पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में बेटा फर्स्ट टर्म मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बेटा. फर्स्ट टर्म आई हैव एक्सप्लेन टू यू what are the different terms related to the partnership. First term is capital. Capital means the sum invested by the partners in any kind of business. Second term was time duration, means for how much time. It may be monthly, yearly, or decade, or whatever may be the duration is. Next one was the profit. Profit is nothing but how much profit is earned by the partners at the end of this certain period. After that, we have seen the relationship between profit, capital, and time. And this relation was profit equals to capital into time. Profit equals to capital into time, means profit is directly proportional to the capital and directly proportional to the time. If suppose somewhere time is constant or time is not mentioned in the question, assume the time duration or the time invested is same, then profit will be directly proportional to the capital invested. On the same pattern, we have seen one or two questions yesterday. Next one was, then I have explained how to handle the questions with an exam, with the help of an example. Suppose capital and time ratio is given to us. What is the ratio of profit? So we have seen this with the help of an example. We have seen this with the help of an example. After that, we have seen the different types of partnership. Their partnership are of two types. First one is of simple partnership, and second one is compound partnership. Simple partnership means either capital or time will constant. Only one term, only one parameter will variable. If time is same, then this sum invested will be different. If sum invested is same, then time duration will be different. In simple partnership, in compound partnership, what we have seen, different amount invested or different sum invested for the different time. After that, we have seen some beautiful concept of ratio, because the main fundamental to solve the questions related to the partnership is ratio. If you know how to convert the ratio or how to calculate the ratio among the terms, then you can directly solve the question. We have discussed 3-4 methods to convert ratio. एक मेथड मैंने ये भी बताया था, but I already told you please don't use this method. This is time taking method. After that, I have explained 2 more methods to convert the ratio or to establish the relationship. This was the another method, and we have seen some questions related to the पार्टनरशिप. एक क्वेश्चन कल हमने डिस्कस किया था, दोनों के सम का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ था बेटा, दोनों पार्टनर्स का सम इन्वेस्टेड दिया था, एक को प्रॉफिट हो रहा था दूसरे को नहीं. तो बेटा ये हमने डिटेल में भी सॉल्व किया था, और इसके बाद मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था. मींस हम सॉल्व करने का नीड भी नहीं होगा, जो बंदा जितना पैसा इन्वेस्ट करेगा उसको प्रॉफिट इतना ही होगा. तो इस क्वेश्चन को हमने डायरेक्टली सॉल्यूशन ऑप्शन के हेल्प से भी कर लिया था बेटा. आफ्टर दैट वी हैव सीन वन मोर क्वेश्चन, हमने ये सॉल्व किया था. उसके बाद आफ्टर दैट वी वर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, उसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे बेटा. बट मैंने बताया था कि कल मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और अच्छा मेथड बताऊंगा, है ना. yesterday I told you I will explain a different method to solve this question, because अगर मैं ऐसे करने जाऊंगा ना, या आप इस टाइप से सॉल्व करोगे, इट विल टेक टाइम. और बेटा अगर हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं तो हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे. ऐसे कौन सॉल्व करेगा? जो बेटा 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, या जो हमारे 6th या 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, वो इस टाइप से सॉल्व करेंगे. बेटा यहाँ पर हमें डिटेल सॉल्यूशन नहीं करना है. बेटा हमने सॉल्व किया था तो ये काफी टाइम ले लिया था इस क्वेश्चन ने. तो बेटा आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन. आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन. What was this question? We were attempting question number 3. ABC subscribe, है ना, ABC subscribes a sum of 75,500. देखो बेटा, although कल हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया था, बट बेटा कल जिस मेथड से हमने ये सॉल्यूशन किया था, इट वाज टाइम टेकिंग मेथड. इट वाज टाइम टेकिंग मेथड.
So today I am going to tell you a basic method or time saving method to solve this question. देखो पार्टनरशिप के क्वेश्चन में कुछ नहीं है बेटा. इफ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो प्रोपोर्शन देन आप इजीली सॉल्व कर लो. देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास 3 पार्टनर थे बेटा और तीनों ने कितना सम इन्वेस्ट किया था 75,500. देखो बेटा 3 पार्टनर है मेरे पास, 3 पार्टनर है ए बी सी. बेटा कितना सम इन्वेस्ट किया है 75,500. ठीक है. और क्वेश्चन में क्या कहा था बेटा, फर्दर ही सेड ए सब्सक्राइब 3,500 रुपीज मोर देन बी. ए सब्सक्राइब 3,500 रुपीज मोर देन बी मीन्स ए इतना पैसा ज्यादा बी से कर रहा था. और फिर बेटा एक और बात हमें दी हुई थी कि बेटा बी सब्सक्राइब 4,500 रुपीज मोर देन सी. बी सब्सक्राइब 4,500 रुपीज मोर देन सी. तो बेटा इतना डेटा लिखने के बाद ना हम ये देखते कि ये जो डेटा हमें दिया हुआ है क्या ये किसी चीज से डिवाइड हो रहा है क्या बेटा, कैंसिल आउट हो रहा है क्या. डेटा मैं आसान कर लेता हूँ बेटा. अगर मैं इसको 150 से डिवाइड करूंगा ना, 500 से अगर मैं डिवाइड करूंगा ना, इफ आई एम गोइंग टू डिवाइड ऑल दिस सम बाय 500 तो बेटा ये कितना आएगा 151. और बेटा ये कितना आएगा 500 से अगर मैं डिवाइड करूंगा 7 और बेटा ये कितना आएगा 9. इसका मतलब क्या है, व्हाट इट मीन कि बी सी से 9 यूनिट ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है. सी से 9 यूनिट ज्यादा कौन इन्वेस्ट कर रहा है बी. और ए बी से कितना यूनिट ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है बेटा 7. तो ए सी से कितना यूनिट ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा होगा बेटा 7 + 9 16 यूनिट ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा होगा. कितना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा होगा बेटा 16 यूनिट. अब देखो बच्चों क्या कह रहा है आगे, अ सम ऑफ 75,500. 75,500 का मतलब है 151. ठीक है 151. तो बेटा अगर मैं यहां से ये कैलकुलेट कर लूं कि सी ने कितना इन्वेस्ट किया होगा, अगर मैं ये कैलकुलेट कर लूं, देखो बेटा तीनों मिलके कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं 151. तो यहां से अगर मैं ये देख लूं सी ने कितना इन्वेस्ट किया होगा, तो सी ने अगर मैं देखूं तो सी ने 16 और 9 मींस 25 कम इन्वेस्ट किया होगा बेटा. 151 में मैं 25 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो दिस विल कम आउट टू बी 126. देखो ये 25 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है ना बेटा, 16 और 9 25 हो रहा है बेटा. अगर इफ आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 151 माइनस 25 दिस विल कम आउट टू बी 126 मींस ये जो 126 है. अब देखो मेरे पास कितने इन्वेस्टर है बिजनेस में, 3 इन्वेस्टर है. तो अगर मैं कैलकुलेट करता हूं बेटा तो दिस विल कम आउट टू बी 42. ठीक है. तो यहां से मैं ये कह सकता हूं व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कि बेटा सी ने जो इन्वेस्ट किया होगा वो 42 इन्वेस्ट किया होगा. और बी सी से कितना यूनिट ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है बेटा 9 यूनिट मींस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इज 42 + 9 दैट इज 51 एंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी इज, वो सी से 9 प्लस सी से कितना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है बेटा 16 ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है. तो 42 + 16 दिस विल कम आउट टू बी 58. ये किसका इन्वेस्टमेंट हुआ बेटा ए का. तो अब देखो यहाँ से मेरे को रेशियो मिल गया बेटा. यहाँ से मेरे को क्या मिला बेटा, रेशियो मिला है. और रेशियो कितना हो गया, ए कितना इन्वेस्ट कर रहा है 58 और बी कितना इन्वेस्ट कर रहा है बेटा 51 और सी कितना इन्वेस्ट कर रहा है बेटा 42. अब ये चीज देखो कल हमने ड्राइव की थी तो हमने ना बहुत सारा कैलकुलेशन करके ये रिलेशन ड्राइव किया था, बट वहां पे बेटा हमारा बहुत टाइम लग गया था. वहां पर हमारा क्या है बेटे बहुत टाइम लगा था. अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बेटा, क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मच डज ए रिसीव. ए कितना रिसीव कर रहा है बेटा, ए कितना रिसीव कर रहा है 58 यूनिट रिसीव कर रहा है. और कितना इन्वेस्ट किया है 151 यूनिट. और क्वेश्चन में क्या कहा है कि अगर सबको टोटल प्रॉफिट कितना मिल रहा है 45,300 का, 45,300 बेटा. तो आफ्टर सॉल्विंग दिस I will get
17,400 as my answer. रुपीज 17,400 as my answer. बोलो बेटा, is this clear now? Is this clear to everyone? Pritam, is this clear? Arpit? Shall I explain it again बेटा? देखो बच्चों, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं. I am going to explain it again. I am going to explain it again. Yesterday we were solving the question number 3. What was that? ABC subscribes a sum of 75,500 for a business. ABC ने डिसाइड किया कि चलो एक बिजनेस करते हैं और तीनों ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है बेटा? 75,500 का. ठीक है. उसके बाद बोला है A सब्सक्राइब ₹3500 मोर देन B. मीन्स जो B इन्वेस्ट कर रहा है ज्यादा कौन इन्वेस्ट कर रहा है बेटा? A इन्वेस्ट कर रहा है. क्या बोला था? आफ्टर दैट ही सेड B सब्सक्राइब 4500 रुपीज मोर देन C. मीन्स B C से कितना ज्यादा इन्वेस्ट करेगा? 4500 इन्वेस्ट करेगा. और इन्होंने कहा है कि एट द एंड ऑफ सर्टेन टाइम पीरियड जो प्रॉफिट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है बेटा? 45,300. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है हाउ मच डज A रिसीव. मीन्स A को कितना मिला होगा. तो बेटे कल हमने इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करे थे एक कन्वेंशनल अप्रोच से. हम लोग हमने कन्वेंशनल अप्रोच फॉलो किया था. कल हमने इस मेथड से सॉल्व किया था. दोनों का कंबाइंड, तीनों का कंबाइंड हमें दिया हुआ है. फिर क्वेश्चन में कहा था A B से इतना ज्यादा कमा रहा है और B C से इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है. तो यहां से बेटा हमने क्या किया था ना, व्हाट वी डिड, हमने दो इक्वेशन बनाए थे. एक इक्वेशन ये आया था बेटा, दो इक्वेशन थे, दोनों को सॉल्व किया था. दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके A C और B का अलग अलग वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था बेटा. आफ्टर दैट हमने ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बेटा रेशियो कैलकुलेट किया था. रेशियो के बाद फिर मैंने बच्चों ये देखा था. तो मेरा आंसर कितना आया था? ₹17,400. बच्चों इफ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस मेथड दिस विल टेक टाइम. कल मैंने पहले बताया था कि बेटा ये टाइम ले लेगा. तो ऐसे क्वेश्चन को ना थोड़ा दिमाग से सोचेंगे, हम थोड़ा दिमाग से सोचेंगे. तो मैंने क्या किया बेटा कि तीनों बंदे कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? 75,500. A B से 3500 ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है और B C से कितना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है? 4500. तो बेटा मैंने सोचा कि क्या ये किसी चीज से कैंसिल हो सकता है. मैंने सबको पूरे जितने भी वैल्यू मेरे को गिवन थे मैंने 500 से डिवाइड करके देखा. जब मैंने 500 से डिवाइड किया तो बेटा ये वैल्यू ये किसके इक्वल आया है? 151. और यहां से मैं कहूंगा कि A जो है वो B से कितना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है? 7 यूनिट ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है. और B C से कितना यूनिट ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है? 9 यूनिट ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है. तो यहां से मैं ये नहीं कह सकता हूं कि A C से 9 + 7 मीन्स 16 यूनिट ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा होगा. तो वही बेटा मैंने यहां पर लिखा है कि जो भी C इन्वेस्ट कर रहा होगा उससे बेटा 16 यूनिट कौन ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है बेटा? A. और B कितना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है बच्चों? 9 यूनिट. अब देखो बेटा अब यहां पर इन्वेस्टमेंट कितना एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हो रहा है बेटा? 16 + 9 मीन्स 25 यूनिट. अब देखो बेटे इन्वेस्टमेंट कितना है? 151 यूनिट का है. 25 यूनिट एक्स्ट्रा मीन्स मैंने क्या देखा? 25 सब्ट्रैक्ट करके मैंने कैलकुलेट किया कि 126 आ रहा है. इनिशियली मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि तीनों पार्टनर्स इक्वल इन्वेस्ट कर रहे हैं. तीनों पार्टनर्स क्या है बेटा? इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो मैंने 126 को 3 से डिवाइड किया तो वैल्यू ऑफ ईच will come out to be 42. मीन्स हर एक बंदा कितना इन्वेस्ट कर रहा होगा? 42 यूनिट. बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या गिवन है कि सिर्फ 42 कौन इन्वेस्ट कर रहा है? C इन्वेस्ट कर रहा है. B C से 9 यूनिट ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है. तो B कितना इन्वेस्ट कर रहा है बेटा? 51 यूनिट. और A बेटा A C से कितना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है? 16 यूनिट. यानी कि A ने कितना इन्वेस्ट किया है बेटा? 51. तो यहां से बच्चों मैंने क्या देखा? यहां से मैंने देखा कि A B C के इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया. A B C के किसका रेशियो आया बेटा? इन्वेस्टमेंट का रेशियो आया है. अब बच्चों अब मैं तीनों को सम कर रहा हूं तो तीनों इन्वेस्ट कितना
कर रहे हैं बेटा 151 यूनिट कर रहे हैं, 151 यूनिट कर रहे हैं। और बेटा पूछा ए का प्रॉफिट का शेयर कितना होगा। ए ने जो इन्वेस्ट किया है प्रॉफिट भी उसी प्रोपोर्शन में होगा, बिकॉज टाइम का जिक्र नहीं किया है। टाइम का जिक्र नहीं किया है तो प्रॉफिट किसके प्रोपोर्शनल होगा, कैपिटल के प्रोपोर्शनल होगा बेटा। तो फिर 58 अपॉन 151, ये आफ्टर सॉल्विंग दिस आई विल गेट ₹17,400 एज माई आंसर। बोलो बेटा, इज दिस क्लियर नाउ टू एवरीवन? इज दिस क्लियर नाउ तिवारी? इज दिस क्लियर नाउ? Yes, sir. तुषार, विनायक, Yes, sir. इशिका, अर्पित, अंकिता, इज दिस क्लियर ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो बेटा देखो ऐसे आप इस टाइप से भी सोच सकते हैं बेटा। ये जरूरी नहीं है कि आप लॉन्ग अप्रोच से ही जाओ। अगर ये क्वेश्चन मैं टेस्ट में भी देता हूं ना तो बच्चे यही यही लिख के सॉल्व करना शुरू करेंगे, दे विल सॉल्व इन दिस मैनर। नहीं बेटा, ये नहीं करना है, हमें टाइम सेव करना है। हर चीज को मैं कहता हूं कि यूनिट के टर्म में ले आओ, यूनिट के टर्म में ले आओ, यही मैं बोलता हूं बेटा। सी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, थ्री पार्टनर्स, question number 4, three partners share the profit in a business in the ratio 8:7:5। देखो तीन पार्टनर हैं, वो इस रेशियो में क्या है बेटा, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। आफ्टर दैट दे इन्वेस्टेड देयर कैपिटल फॉर 7 मंथ्स, 8 मंथ्स एंड 14 मंथ्स। अब देखो टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी बेटा आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट वाज द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। देखो बेटा एक बात मैं आपको और बताता हूं, कभी भी पार्टनरशिप के क्वेश्चन पूरा डिटेल में सॉल्व नहीं करेंगे, कैलकुलेशन का एक सिंगल स्टेप करके देखेंगी। अगर किसी क्वेश्चन में मैच हो रहा है तो ठीक है, अगर दो ऑप्शन सेम है तो तब नेक्स्ट स्टेप करना, अदरवाइज एक सिंगल। हाँ बेटे 64:49:20। हाँ हाँ, यही है बेटा करेक्ट आंसर। देखो बेटा पहले क्या करेंगे, सिंगल स्टेप करके देखेंगे, आंसर टैली होता तो ठीक है, अगर दो आंसर सेम आ रहे तो फिर हम सेकंड स्टेप की तरफ जाएंगे, अदरवाइज एक फर्स्ट स्टेप ही कैलकुलेशन का आपको बता देगा कि आंसर क्या आने वाला है। क्वेश्चन में प्रॉफिट और टाइम गिवन है, आपसे पूछ रहा है कैपिटल का रेशियो। प्रॉफिट का रेशियो बेटा गिवन है, ठीक है। प्रॉफिट रेशियो इज व्हाट 875 and time is 7:8:14, 875 and time ratio is 7:8:14, यही है ना 7:8:14। 7 महीना, 8 महीना और 14 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और प्रॉफिट है 875 के रेशियो में। देखो बेटा हमसे पूछा है कैपिटल, अब आपको पता है प्रॉफिट कितना होता है, कैपिटल इंटू टाइम। मीन्स अगर कैपिटल आप चाहिएगा तो प्रॉफिट के रेशियो को किससे डिवाइड करना होगा, टाइम के रेशियो से डिवाइड करना होगा। तो बेटा अगर डिवाइड करेंगे तो यार बड़ा प्रॉब्लम आता है, तो ऐसा करते हैं, ये जो हमको दिखता है ना 8, 7, 8, 14, इसका एलसीएम ले लेंगे। इन तीनों का एलसीएम बेटा कितना होता है 1:12 आएगा, 1:12। तो बच्चों अगर मैं इफ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट कैपिटल रेशियो दिस विल कम आउट टू बी 8 इंटू 112, 7 कितना टाइम्स जाएगा 16 टाइम्स, 8 इंटू 16। फिर बेटा 8 7 मीन्स 14 इंटू 7, देन 5 14 14 112, 8 टाइम्स 5 इंटू 8, 5 इंटू 8, ठीक है बेटा। क्या कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, हाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा सारा टर्म। इफ आई एम गोइंग टू डिवाइड इट बाय 2, 8 इंटू 8 मीन्स फर्स्ट रेशियो 64 आएगा, फर्स्ट टर्म 64 आएगा। मैं अपने ऑप्शन को देखूंगा 64 सिर्फ एक ही जगह आ रहा है, ऑप्शन डी। आगे सॉल्व करने का नीड भी नहीं है, आई विल स्टॉप हियर, आई विल स्टॉप हियर। बेटा पहले मैंने 2 से कट किया है सबको, 2 से कट किया टू मेक माई कैलकुलेशन मोर इजियर, ठीक है बेटा। एंड 5 इंटू 4 20। तो देखो डिटेल में बेटा ऐसे सॉल्व करेंगे हम। मेरे को फर्स्ट टर्म मिल गया था 64, मैंने अपने ऑप्शन से देखा, ऑप्शन डी इज माय 64 विथ फर्स्ट टर्म। तो बेटा आगे मैं सॉल्व भी नहीं करूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या बता रहा हूं बेटा, आगे सॉल्व करने का नीड भी नहीं है, वी विल गेट आवर आंसर, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन?
Is this clear to everyone now? On the same pattern, Yes, sir. Yes, sir. on the same pattern, solve question number 5. On the same pattern, solve question number 5. On the same pattern, question number 5. देखो बेटा, इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले तो आपको रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैपिटल का रेशियो गिवन है और टाइम का रेशियो गिवन है। फर्स्ट यू विल कैलकुलेट प्रॉफिट रेशियो, फर्स्ट यू विल कैलकुलेट प्रॉफिट रेशियो, आफ्टर दैट द ओवरऑल प्रॉफिट इज गिवन टू अस एंड आस्किंग फॉर ए एंड बी शेयर इन द प्रॉफिट। सी को ए से इतना ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, बी का प्रॉफिट पूछा है, आस्किंग फॉर बी's प्रॉफिट। अर्पित, आंसर आया? हाँ करो बेटा करो, टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट। हो गया सर, ए आ रहा है। हाँ ए आएगा, बहुत हाँ सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है बेटे। सर, वो 7 यूनिट का दिया हुआ है वैल्यू। हाँ 7 यूनिट का वैल्यू दिया है, वेरी गुड। 6 का निकाल लेंगे फिर। इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है और टाइम का रेशियो दिया है, 235423। कैपिटल रेशियो इज गिवन टू अस 235 and time ratio is also given to us 235 423 423. Profit ratio we will multiply both, 8 is to 6 is to 15। ठीक है, रेशियो आ गया। क्वेश्चन में बोला है सी गेट अ शेयर ऑफ प्रॉफिट विच इज 1,47,000 मोर देन ए। सी को जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 15 यूनिट का मिल रहा है, ए को प्रॉफिट मिल रहा है 8 यूनिट का बेटा। मीन्स ये 7 यूनिट डिफरेंस है। द वैल्यू ऑफ 7 यूनिट इज गिवन टू अस 1,47,000, 1,47,000। एक यूनिट का वैल्यू कितना आएगा बेटा? 21,000। आस्किंग फॉर बी शेयर ऑफ प्रॉफिट। बी का शेयर पूछ रहा है बेटा, बी को कितना मिलेगा? 6 यूनिट मिलेगा, 6 यूनिट का वैल्यू पूछा है बेटा, तो 1,26,000। Many of you have already calculated. Many of you have already calculated. Is this clear to everyone? इस टाइप से सोचना है बेटा, टाइम लगेगा ही नहीं, हार्डली 20-25 सेकेंड्स आपको लगेंगे, कोई टाइम लगेगा ही नहीं। नाउ moving forward on the next question, solve question number 7. Solve question number 7. Question number 7.
Anyone with the answer? सर 4.65 आ रहा है. No, beta. 5 is the correct answer. Check your calculation again. ओके सर. ABC started a business. Twice the investment of A is equals to the thrice of B and also 5 times the investment of C. So beta, what is A? He is saying 2A equals to twice the investment of A is equals to the thrice of investment of B. 2A equals to 3B and this is also equals to 5C. So beta, हाँ 5 तुषार, you got the correct answer. कल बेटा मैंने आपको बताया था कि इस टाइप से अगर कुछ दिया होगा ना कि सपोज करो आई एम गोइंग टू एस्टैब्लिश और आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी। बेटा ये रेशियो किसको बताएगा बच्चे? इन्वेस्टमेंट को बताएगा। बेटा अगर ए का रेशियो चाहिएगा तो मैं बी और सी के साथ में जो टर्म है उनका मल्टीप्लाई करूंगा। मैं इसमें 3 और 5 का मल्टीप्लाई करूंगा टू कैलकुलेट ए वैल्यूज। तो 3 इंटू 5 कितना है बेटा? 15। इफ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी, बी को मैं थोड़ा हाइड करूंगा बेटा। आई विल मल्टीप्लाई 2 एंड 5, 2 and 5, this will come out to be 10. If I am going to calculate C value, if I am going to calculate C value, I will hide it and I will multiply 2 into 3, this will come out to be 6. So this is nothing but this is the ratio between their investment. अब बेटा अगर investment का यही ratio है so what he is asking? He is asking for the profit of B. Profit of B, total profit is given to us. After a year बोल रहा है means time same है. तो whatever may be the ratio of investment, same will be the ratio for their profit. Total profit बेटे who कितना रहा है बेटा? टोटल प्रॉफिट मेरे को हो रहा है 31 यूनिट का हो रहा है और ये 31 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 15.5 मीन्स कितना टाइम है बेटा? 0.5 टाइम्स। आस्किंग फॉर बीज प्रॉफिट, बी को कितना प्रॉफिट हो रहा है? 10 यूनिट का, तो 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा। योर आंसर विल कम आउट टू बी 5 लाख। योर आंसर विल कम आउट टू बी 5 lakhs. Is this clear to everyone now? Tiwari, is this clear? यस सर। Yes, sir. Clear, sir. हाँ। Ankita, is this clear now? यस सर. Solve question number 8. Same question है, only one line is added more. एक लाइन और ज्यादा ऐड की है। सेम क्वेश्चन है बेटा। टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट। सेम क्वेश्चन। सर कौन सा बोले हैं? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। से 6484. हाँ 6484 इज द करेक्ट आंसर।
All of you got it? Six four eight four. हाँ, वेरी गुड हिमांशु, वेरी गुड तिवारी, तुषार, अर्पित, वेरी गुड, अपूर्व, वेरी गुड बेटा। ABC सेम वही दिया है, thrice the investment of A is equals to the twice of investment of B and also 4 times of B. Means 3A equals to 3A equals to कितना होगा बेटा? 3A equals to 2B equals to 4C. 3A equals to 2B equals to 4C. तो बेटा आप यहां से क्या कैलकुलेट करेंगे? ABC का रेशियो कैलकुलेट करेंगे। वो रेशियो बेटा कितना आएगा? 4:6:3 है ना? 4:6:3। क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा? क्वेश्चन में बोला है कि सी को जो शेयर मिल रहा है ना, वो 4863 मिल रहा है। अब देखो बेटा रेशियो कितना आएगा? 4:6:3। मीन्स 3 यूनिट का वैल्यू दिया है बेटा 4863। तो बेटा 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? 1621 आएगा, 1621। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है ए का वैल्यू बताओ। अब ए का रेशियो कितना है? ए का रेशियो तो 4 है ना, ए को 4 यूनिट प्रॉफिट मिलेगा। तो 1621 का 4 टाइम्स करेंगे तो आंसर विल कम आउट टू बी 6484। ठीक है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? नाउ Yes, sir. solve on the same pattern. Solve one more question. Question number 9. First solve question number 9. A and B. Sorry. सॉल्व हो गया 10800। हाँ, then solve question number 10. Okay, solve question number 10. सर 9 वाला नहीं हुआ है अभी, ऊपर करिए एक बार। हाँ, आप करो तो ठीक है, ठीक है। हाँ, 9 वाला भी अच्छा है। 9 वाले का थोड़ा एडवांस वर्जन 10 है। The advanced version of 9 is 10. प्रकट लेट क्यों हो भाई? ओके, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। तिवारी, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया सर, सी आ चुका है, डी 10 कर रहे हैं। सी आ चुका है। दोज हु हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9 solve question number 10. Those who have done with the question number 9 solve question number 10 now.
Ankita, did you get the answer? Question number 10. सर बना रहे Okay, take your time, solve it. Palash, did you get the answer? Question number 10. Anyone? Arpit? निकलवाओ कुछ शुरुआत। सॉल्यूशन दे बेटा। देखो चलो सॉल्यूशन देते हैं बेटा। दो बिजनेसमैन हैं ए और बी, उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया किस रेशियो में बेटा? 5:8 में। ओके, अब फिर बेटा बोल रहे हैं कि दे डिसाइडेड टू री इन्वेस्ट 30% ऑफ द प्रॉफिट दे अर्न बैक इनटू द बिजनेस। whatever may be the profit. Avinash, kindly mute your mic. हेलो हेलो Avinash, रोड पे हैं हम बाहर। they decided to reinvest. Further, they decided to reinvest 30% of the profit they earned back into the business. Okay, the remaining part they distributed among themselves. Okay, if a share of the share of the profit was 87,500, then how much profit did the business make? Okay, कुछ नहीं करना है बेटा, पहले तो ये देखो बच्चे कि उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किस रेशियो में किया है? 5:8 मीन्स अगर 13 यूनिट इन्वेस्ट किया है तो ए को कितना पार्ट मिलेगा बेटा? 5 पार्ट मिलेगा आउट ऑफ 13। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से सुनेंगे बच्चों, लिसन केयरफुली। आप ये समझो बेटा कि सपोज करो उनको बिजनेस में प्रॉफिट कितना हो रहा है? 100% हो रहा है। बिजनेस में प्रॉफिट कितना हो रहा है? 100% हो रहा है। अब बेटा 100% प्रॉफिट हुआ है, इनिशियली मैं एज्यूम करके चल रहा हूं बच्चों कि बिजनेस में प्रॉफिट 100% हो रहा है, एंड देन व्हाट ही इज सेइंग, they decided to reinvest 30% of the total profit earned back into the business. Okay, अब क्या हुआ बेटा, इस 100% का भी 30% उन्होंने बेटा क्या किया है? they decided to reinvestment.
they decided it to reinvest into the business. So what is the remaining profit now? अब remaining profit कितना होगा? 70% ही होगा ना, पहले बोलो remaining profit कितना होगा बेटा? 70% होगा ना, एग्री करते हो इस बात से? रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा? 70%. अब ये रिमेनिंग प्रॉफिट वो अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग इटसेल्फ 5/13. अरे इसी प्रोपोर्शन में तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, तो ए के पास कितना शेयर आएगा? यही आएगा बेटा. दिस इज नथिंग बट दिस इज ए शेयर इन द प्रॉफिट, ए शेयर इन द प्रॉफिट. और बच्चे और बेटा क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए का शेयर जो प्रॉफिट में है वो कितना है? 87,500. 87,500 मीन्स बेटा 70% ऑफ 5/13 ही कितना है? 87,500. ठीक है बेटा, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, व्हाट वाज, ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है बेटा देन हाउ मच प्रॉफिट डिड द बिजनेस मेक. अब बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रही है? बिजनेस तो 100% प्रॉफिट ही कमा रही है. आपसे बेटा 100% का वैल्यू पूछा है, इसका वैल्यू पूछा है बेटे, 100% का वैल्यू पूछा है. आफ्टर सॉल्विंग इट you will get rupees 3,25,000 as the answer. After solving it, you will get rupees 3,25,000 as the profit. After solving this, you will get 3,25,000 as the profit. Is this clear to everyone? Is this clear to everyone? Yes, sir. पलाश, अपूर्व, प्रीतम, इशिका, विनायक, तुषार, is this clear to everyone now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Is this clear? एक बार और एक्सप्लेन करिए, ठीक है प्रखर? वेट बेटा, फर्स्टली हम क्वेश्चन को देखते हैं बेटे. क्वेश्चन में कहा था कि दो बंदे हैं ए और बी, वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं कितना? 5:8 के रेशियो में. फिर उन्होंने डिसाइड किया कि 30 जो भी हम प्रॉफिट कमाएंगे उसका 30% हम फिर से इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में, ठीक है, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो अपने आप में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. जब उन्होंने रिमेनिंग प्रॉफिट अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट किया तो ए के पास जो शेयर आया है वो कितना आया है? ₹87,500. तो क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मच प्रॉफिट द बिजनेस मेक, तो बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया. मीन्स हमें ए का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हर एक कैलकुलेशन को ए के स्केल पर मैं ले आता हूँ बेटा. इनिशियली मैं ये एज्यूम करके चलूंगा, इनिशियली हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि हमें टोटल प्रॉफिट हो कितना रहा है? 100% हो रहा है, क्योंकि किसी चीज को अगर 100% मान लेते हैं ना तो कैलकुलेशन हमारे इजी बन जाते हैं बेटा. अब देखो हमने ये एज्यूम किया कि टोटल प्रॉफिट हमें 100% हो रहा है. अगर टोटल प्रॉफिट 100% हो रहा है, फिर हमने डिसाइड किया कि हम 30% री इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि 30% हम कहाँ जा रहे हैं बेटा? 30% हम री इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में. तो यानी कि रिमेनिंग प्रॉफिट कितना रहा? रिमेनिंग प्रॉफिट कितना रहा? दिस इज अवर रिमेनिंग प्रॉफिट. अब रिमेनिंग प्रॉफिट हुआ हमारा 70%. क्वेश्चन में गिवन है हमें ए का शेयर, तो बेटा अगर वो इन्वेस्ट 5:8 के रेशियो में कर रहे हैं तो मींस टोटल अगर मैं करूंगा, अगर टोटल वो 13 यूनिट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 5 यूनिट ना. तो बेटा 70% ऑफ हाउ मच? 5/13. और यही वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 87,500. दिस वैल्यू इज गिवन टू अस 87,500. तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट. अब टोटल प्रॉफिट तो हमने 100% एज्यूम कर रखा है ना, तो 100% का वैल्यू बेटा पूछ रहा है. तो 100% वैल्यू विल कम आउट टू बी 3,25,000. इज दिस क्लियर नाउ प्रखर? इज दिस क्लियर नाउ?
Okay, very good. One last question for today. Last question for today. Question number 11. Question number 11. X and Y enters into a partnership with a capital ratio 3:5. X और Y एक बिजनेस में एंटर कर रहे हैं किस रेशियो में? 3:5 में. ओके. उसके बाद कह रहा है आफ्टर 5 months X adds 50% of his capital while Y withdraw 60% of his capitals. What is the share in lakhs of X in the annual profit of 7.84 lakhs? 7.84 lakhs. Anyone? I have shared the feedback link in the group. Kindly fill it. But before feedback, let solve question number 11. बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा. क्वेश्चन नंबर 11. जैसे ही क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 12 हम इजीली कर लेंगे. आपका सेकंड सेशन कब स्टार्ट होता है? 10:30 ना? क्यों बेटे? सेकंड सेशन कब स्टार्ट होता है? इंग्लिश वाला सेशन कब स्टार्ट होता है? 10:30 ना? बोलो बेटे. देखो बेटा क्वेश्चन को सॉल्व. हाँ, अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. पहले फर्स्ट रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. व्हाट ही इज सेइंग, X and Y enters into a partnership with a capital in the ratio 3:5. Okay. X और Y एक पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हैं और उनके जो कैपिटल का रेशियो है वो बेटा कितना है? 3:5. ओके. अब क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा? क्वेश्चन ने बोला है आफ्टर 5 months X adds 50% of his capital while Y withdraw 60% of his capital. ओके. 5 महीने के बाद X ने 50% ऐड किया लेकिन Y ने 60%
विड्रॉ कर लिया है। ओके, व्हाट इज द शेयर इन लाख फॉर एक्स इन द एनुअल प्रॉफिट? एनुअल मींस 12 महीने की बात हो रही है। कितने महीने की बात हो रही है बेटा? 12 महीने की बात हो रही है। तो देखो बच्चों क्या हो रहा है ना, यहां पर रेशियो मेरे को थोड़ा कम है, तो अगर मैं अपने कैलकुलेशन को इजी बनाना है तो मैं क्या करता हूं, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो मेरा रेशियो कितना हो गया? 30:50। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब 5 महीने बाद वो कितना इंक्रीज कर देता है बेटा? 5 महीने के बाद वो 50% इंक्रीज कर देता है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि x 5 महीने के बाद 50% अपना कैपिटल इंक्रीज कर देता है, while y withdraw 60% ऑफ हिज कैपिटल। तो देखो बेटा 5 महीने की बात कर रहा है ना, तो यानी कि 5 महीने तक तो 30 ही रहेगा कैपिटल। अब बच्चों x 50% इंक्रीज कर रहा है बेटे, 50% इंक्रीज कर रहा है। 30 का 50% कितना होता है? 15। यानी कि पहले अगर 30 इन्वेस्ट कर रहा था तो अब कितना इन्वेस्ट कर रहा होगा? 45 यूनिट। 45 यूनिट ना, मींस 5 महीने के लिए तो 30 यूनिट है, बट जो आगे के अब 7 महीने रहेंगे तो वहां पर एक्स का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? ये होगा ना। अरे बेटा क्वेश्चन में कहा है कि 5 महीने के बाद x 50% इंक्रीज कर देता है। बेटा 30 का 50% होता है 15, मींस 5 महीने तक तो 30 यूनिट इन्वेस्ट करेगा, लेकिन साल के जो 7 महीने और रहेंगे उन 7 महीने में कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा उसका? 45 यूनिट। बोलो, आर यू क्लियर विद दिस? आर यू क्लियर विद दिस? बोलो बेटा, आर यू क्लियर विद दिस? एक्स को जो मैंने लिखा है क्या ये क्लियर है आपको? बोलो बेटा, विनायक, अंकिता, तुषार, इज दिस क्लियर? हाँ ना। अब देखो चलते हैं y के पास। अब बेटा y क्या कर रहा है? y 60% विड्रॉ कर ले रहा है, यानी कि y 60% विड्रॉ कर रहा है। 50 का 60% होता है 30, मींस 5 महीने तक तो उसने यही इन्वेस्ट किया, लेकिन 5 महीने के बाद बेटा उसने 60% विड्रॉ कर लिया। यानी कि अब वो अगर 50 का 60% होता है 30 यूनिट, यानी कि 40% इन्वेस्ट करा है, तो अब कितना इन्वेस्ट करा है? 20 यूनिट्स ओनली। और कितने महीने के लिए? नेक्स्ट 7 महीने के लिए। तो बेटा ये इनका क्या हो गया है? ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया। देखो यहां से क्या कैंसिल हो सकता है? 0 0 सॉरी कैलकुलेशन को इजी बनाना है तो बेटा क्या 5 से कैंसिल हो सकता है क्या? हाँ 5 से कैंसिल हो सकता है, 5 से कैंसिल हो सकता है। यहाँ पर 4 रहेगा, यहाँ पर 9 रहेगा और यहाँ पर बेटा 6 रहेगा। बच्चों अब मैं अगर यहाँ से देखूं तो बेटा 5 × 6 30 प्लस 9 × 7 63 is to 50 प्लस 28, ये कितना होगा बेटा? 78। 30 प्लस 63 बेटा कितना हो जाएगा? 93। मींस अब जो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट है वो बेटा कितना है? 93:78। 93:78। बेटा रेशियो हमें देखो बच्चों, पहले रेशियो 3:5 गिवन था, वो बेटा एनुअल के टर्म में गिवन था। अब हमने रेशियो को किसके टर्म में ले लिया बेटा? मंथली के टर्म में हमने ले लिया है, बिकॉज हमारे इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं। तो दिस इज आवर न्यू इन्वेस्टमेंट रेशियो। ये बेटा क्या है? ये हमारा न्यू इन्वेस्टमेंट रेशियो है। व्हाट इज दिस? दिस इज आवर न्यू इन्वेस्टमेंट रेशियो। न्यू इन्वेस्टमेंट रेशियो। नाउ कम टू द क्वेश्चन पार्ट। Come to the question part. What he is asking, what is the share of X in the annual profit of 6.84 lakh? बेटा जब कैपिटल जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 93:78 के रेशियो में कर रहे हैं, तो डोंट यू फील बेटा प्रॉफिट भी इसी रेशियो में होगा 93:78। क्वेश्चन में हमसे पूछा है बेटा अगर टोटल प्रॉफिट 6.84 लाख का हो रहा है तो एक्स को कितना प्रॉफिट मिल रहा होगा? एक्स को प्रॉफिट, तो बेटा एक्स को जो प्रॉफिट मिलेगा ना वो 93 यूनिट का मिलेगा। कितने में? 93 + 78। 93 + 78 करूंगा, ये 100 में 7 कम है, यानी कि 171 हो जाएगा। और टोटल प्रॉफिट है कितना बेटा? 6.84 लाख का है। बेटे 171 से ये डिवाइड करूंगा ना तो ये कितना टाइम्स डिवाइड होगा? 0.04 टाइम्स डिवाइड होगा, 0.04 टाइम्स।
if I am going to multiply 0.4, so this will come out to be rupees 3.72 lakh. This will come out to be rupees 3.72 lakh. Is this clear to everyone? Beta, is this clear to everyone? Tiwari, is this clear now? Yes, sir. ये repeat करूं बेटे? No, sir. बेटा रिपीट करना है. तुषार, अंकिता, विनायक, is this clear now? Yes, sir. Yes, हाँ, ठीक है. So बेटा, we are ending our today's session here.